5432. Arams, How do you read? Arams. You did mistake in W1 and W2. Arams. One by one. I say Easy. again. Uh, Daily ground. Vector Tango Alpha Juliet Delta. 1 to 1 decimal 5. 54321. How do you read? reading you 2. Reading 2. I say again. Daily ground. Vector Tango Alpha Juliet Delta. 1 to 1 decimal 5. 1 2 3 4 5. 5 4 3 2 1. How do you read? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Reading you 5. Delhi Tower. Acha. Sorry, Delhi ground. Now, when you were saying na 1 to 1 decimal 5 or 118 decimal 5, that frequency, just before that, add one preposition that is on. Okay? Delhi Tower, Victor Tango, Alpha Juliet Delta, on 1 2 3 5 1 2 3 decimal 5. Okay? Frequency evening, mein sir. on. Hi, good evening. You can do the readability check. Yes. So give me 2 minutes. Okay, so take your time. So, okay, Ajad, got it? When you are saying frequency, you can add one preposition that is on. Delhi Tower, Victor Tango, Alpha Juliet Delta, on 118 decimal niner. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? This is the actual call. Got it? ऑन का वैल्यू है वो समझ में आना चाहिए कि यू आर यूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टूड? Okay, sir. ठीक. Done. Now, as per our usual plan, we'll just have a look on chart number 4 today, and there we'll see the echolocation designator of every airports. Then after we'll move to look the actual calls, how the calls is being given with some of the basic calls. Okay? So we'll have a look on chart number 4. Chart number 4. 2 हमने देख लिया, 3 हमने देख लिया, 4. Okay, just a second. Okay, this is chart number 4 in front of you. Help me to write the location designators of some of the airports. Now, who is going to tell me about one by one? ऊपर से देखते हैं. Lucknow. Do it on 2 to 3 minutes. Okay, do it quickly so that we can move to further topics. Anyone can unmute and say Lucknow. Vector Tango in India, Lima Kilo. आराम से. This is Victor Tango नहीं, this is Victor only. Victor India Lima Kilo. ठीक है? Yes. Victor India Lima Kilo. Done. Varanasi. Victor India, Bravo November. Victor India Bravo November. Done. What about Gaya? Victor Eco Golf Yankee. Very good. Gaya का है Victor Echo Golf Yankee. Everyone can make a note. This is the exception here. Ranchi Jamshedpur. Say it quickly together.
Ranchi and Jamshedpur. Victor Eco Romeo Charlie. In Jamshedpur, Victor Eco Juliet Sierra. Juliet Sierra. Juliet Done. What about Kolkata? What about Kolkata? Victor Eco Victor Charlie Eco Charlie. Charlie Charlie. Charlie, Charlie. Very good. About Bhubaneswar? Vector Echo Bravo Sierra. Victor Eco Bravo Sierra. Bravo Sierra. Very good. Visakhapatnam? Vector Echo Vector Zulu. Victor Oscar Victor Zulu. Victor Echo Victor Zulu. Okay. As per see, in real chart it is an Oscar that I can understand, but this one is hypothetical root chart. You can see now. This is hypothetical. Now just have a close look to the Visakhapatnam area. This Visakhapatnam still lies in Kolkata FIR, so it will be Victor Echo Victor Zulu. सर बट ठीक है? इसका मैक्सिमम पोर्शन तो चेन्नई एफआईआर में ना. Where? Either maximum portion. This one is Visakhapatnam complete. It is the boundary of Chennai FIR. Okay. And for Kolkata, this one is the boundary, red color. Now find out where is that. Got it? Yes sir. Okay. Now about Rajamundry. Who is going to tell? Rajamundry. Participate, guys. Try to do the answer. Keep participating. Victor Oscar Romeo Yankee. Other stations, how you are reading me? Are you reading me on 5? Because sometimes I am reading you on 2, 3. What is my readability there? Reading you 5 sir. Reading you 5. ठीक. I'm surprised कि कहीं मेरा ही voice गड़बड़ तो नहीं चला गया because I had changed the internets and all. ठीक है. Now about Khamanpet, what is that? Victor Oscar Kilo Mike. What about Hyderabad? Victor Eco Victor Eco Hotel Delta Yankee. Yankee. हाँ. Victor Oscar Hotel Yankee. Victor Oscar Hotel Yankee. ठीक है? Exception for Y, and it is Oscar. How? Just have a close look. This is in Chennai FIR. Are you getting it? This green color line. Chennai FIR. Chennai FIR represented with O, Oscar. Now everything is same. Who is going to tell me about Bhopal and Ahmedabad together? Someone can say. Reading you 2. Victor Tango Alpha Bravo Charlie, reading you 2. How can you read me now there? So Bhopal Victor Alpha Bravo Papa. Ahmedabad? Victor Alpha Eco. Alpha Hotel. Just note the exception. This is Alpha Hotel. Okay. Yes sir. So we did practice on chart number 1, 2, 3, 4, and 7 till the time. We had remained with 5, 6, 8 that we'll cover on one by one, like this only. Daily one chart we'll do practice so that we'll cover each and every charts. ताकि आप लोगों को कोई confusion नहीं रहे what we have told. Now, before moving ahead, understand the question scenario, how to write the answer on an answer sheet, and
Today we'll have a look on flight plan and we'll practice some of the question. सबसे पहले आंसर राइटिंग कैसे करनी है. You will get one A4 sheet in the examination, upon which 1/3 of this page will be written with the question. Flight plan. ठीक है, flight plan and the question. ठीक है, अपर पोर्शन में फ्लाइट प्लान लिखा रहेगा and there will be question written over here. Now only 1/4 of the pages will be left blank to you. Chart will be given 8 pages of chart additionally, अलग से दिया रहेगा आपको. क्वेश्चन पेपर के अलावा एक फाइल में चार्ट रखी रहेगी जहां से पलट के आपको रेफरेंस लेना पड़ता है इन हार्ड कॉपी. ठीक है, ऑल द चार्ट्स दैट विल बी गिवन एज अ color printout. Now, how to write the answer? You are having a A4 sheet blank, जो आपका प्रिंटर वाला पेपर होता है ना, A4 साइज का, white and blank. This page will be given to you. You need to split this page into 2 half. ठीक है, you can use pencil, scale, or you can simply fold the paper into 2 half. ठीक है, you can simply fold the paper into 2 half. That will be much enough. आप बीच को पेपर से फोल्ड करो और एक ट्रेश बन जाएगा. आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर पे थोड़ा सा गड्ढा पड़ जाएगा तो आप इसको 2 हाफ में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, नाउ व्हेन यू डिवाइड दिस पेज इनटू 2 हाफ, लेफ्ट साइड विल बी गिवन द पोजीशन ऑफ ट्रांसमीटर. यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसमीटर साइड. मीन्स यू एज अ स्टूडेंट जो आप बोलोगे, वट एवर यू विल से इन द एग्जामिनेशन, यू विल राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड. वट एवर द रेस्पॉन्स विल कम फ्रॉम एग्जामिनर, you will write those things into right hand side. Each and everything shall be written. Now this is not the only thing. The next and most important thing is, whenever you will do writing in the examination, you want to do parallel writing. Parallel writing का क्या मतलब है? Just have a look. Suppose आपने readability check किया तो आप बोलोगे Victor, Delhi ground, Victor Tango Alpha Juliet Delta, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? In the response, examiner told 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Reading you 5. How do you read? Again, you have told reading you 5. Victor Tango Alpha Juliet Delta. Now you can see the area. ठीक है, the area. This one left blank. This one left blank and this one also left blank. जहां पे आपकी राइटिंग है उसके पैरेलल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. कैसे लिखा हुआ है? इन द zigzag motion. This gives 2 indication. What? On a radio telephony, on a single frame of time, either you can transmit, either you can receive. दोनों एक्शन साथ साथ नहीं होंगे in radio telecommunication. You cannot perform both of the action together. If you ever been into cockpit, the moment you will press the PTT switch, जैसे ही आपका ट्रांसमीटर ऑन होगा आपको रिसेप्शन बंद हो जाता है. ठीक है, जैसे ही आप ट्रांसमीटर प्रेस करोगे आपका स्पीकर का साउंड कट हो जाएगा, आप कुछ सुन नहीं पाओगे. एक सिंगल टाइम फ्रेम में आइदर आप मैसेज रिसीव कर सकते हो, आइदर आप मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हो. दिस इज इंडिकेटिंग द सेम. व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग, रिसेप्शन क्लोज. व्हेन वी आर रिसीविंग, ट्रांसमिशन क्लोज. व्हेन वी आर अगेन ट्रांसमिटिंग, रिसेप्शन क्लोज. सो व्हेनेवर we'll writing in zigzag. पैरेलल राइटिंग नहीं करेंगे. Getting it? Hold a second. सर विशाखापट्टनम का आपने कोड क्या बताया था?
sorry, उस time it was in Kolkata. VEVZ. I have seen your message. No problem. The chart you are having there, it is in southern. Okay. So not a problem. You have a different chart. No, means chart is same. The version 2 and the older one is having certain dissimilarities. So whatever the chart you will be given in the examination, आपको उसके हिसाब से कॉल करना है. ठीक है. The chart I was showing on the screen, there it was in Kolkata. So it should be VEVZ. Okay, Okay. sir. Now, the first and main thing is Juliet. you will write in zigzag motion. Parallel writing नहीं करनी है. Got it? Everyone understood? Confirm with yes, no, anything. Don't write in parallel. ठीक है? Zigzag motion में writing करनी है every time. ठीक है? Now, जब आप जिगजैग में राइटिंग करोगे तो भी ये कोशिश करोगे जो लास्ट लाइन ऑफ आपके आंसर राइटिंग है रिसेप्शन साइड में इमीडिएट उसके बिलो लिखो. ये ओवरलैप नहीं होनी चाहिए. ठीक है. मींस जिस पैराग्राफ के सिमेट्रिक आपका आंसर फिनिश हुआ उसके नीचे लिखना शुरू करो. अगेन जिस पैराग्राफ के सिमेट्रिक आपका रिसेप्शन क्लोज हुआ उसके नीचे लिखना शुरू करो. ठीक है. दिस इज गिविंग अनदर इंडिकेशन. व्हाई? हाउ? ये इंडिकेट करता है कि पहले जो कुछ मैसेज ऊपर लिखा हुआ है, राइट, जो पेज के ऊपर लिखा हुआ है अपर पोर्शन में, पहले वो वाला एक्शन हुआ. इट मींस पहले ट्रांसमिशन हुआ, फिर रिसेप्शन हुआ, फिर एक और ट्रांसमिशन हुआ, फिर एक और रिसेप्शन हुआ, फिर एक और ट्रांसमिशन हुआ. सो दिस विल गिव वन क्रोनोलॉजी कि पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ. व्हेन एवर देयर इज एन एक्सीडेंट इंसिडेंट दे आर चेकिंग इट थ्रू दैट लॉग. इसी तरह से तो वहां पे तो एक सेकेंड में मल्टीपल कॉल्स हो जाते हैं. सो दे विल चेक कि 10, 30, 42. ठीक है. 42 is a second, then they will go to millisecond. 18, 17, 15. इसमें जाके वो चेक करेंगे कि पहले कौन सा परफॉर्म हुआ. पहले ट्रांसमिट हुआ, फिर रिसीव हुआ, फिर अनदर टाइम ट्रांसमिट हुआ, फिर रिसीव हुआ. गॉट इट? सो whenever you will write the answer, you will write in two part, transmission and reception. There also you will write in zigzag motion. Parallel writing not allowed. Got it? If anybody will ask why you not write parallelly, then you can tell कि it should be denoted with the time frame. In a single time frame, either we can receive or we can transmit, and then this will give a chronology कि which action has been performed first. ठीक है. अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले क्या हुआ. अगर मैं पैरेलल राइटिंग कर दूं, then who is going to tell me कि पहले ट्रांसमिशन हुआ या पहले रिसेप्शन. If it will be up and down, then you can find the order: first, second, third, fourth. See, टाइम फ्रेम में ये नीचे है. Understood everyone? Got it? Now, before moving ahead, we'll have a look on the examination question pattern. एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है. ठीक है. अच्छे से एक एक स्टेप को समझना. आई एम गोइंग टू गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स, तो ध्यान से सुनना. आई विल ऑल्सो स्पीक स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. These two are the airports for you. ठीक है. This black color bar is the runway. एग्जाम के क्वेश्चन में क्या रहेगा? The moment pilots enter into the aircraft. ठीक है. देखो क्या क्या सिनेरियो जाते हैं. द मोमेंट पायलट इंटर्स इनटू द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट में इंटर किया तो उसको अपना एयरक्राफ्ट पुश बैक करना पड़ेगा, पीछे लेना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, टैक्सी क्लियरेंस मांगेंगे, इंजन रनअप कर सकते हैं, फिर टैक्सी करते हुए एयरक्राफ्ट पहुंचेगा रनवे पे. रनवे पे जाके टेक ऑफ, लैंडिंग, ये दोनों एक्शन परफॉर्म हो सकता है. देन हम टेक ऑफ करेंगे. ठीक है.
टेक ऑफ करने के बाद इनिशियल क्लाइंब का कॉल आएगा, फिर हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद एट अ सर्टेन पोर्शन पहुंच के क्रूज करेगा. क्रूज मीन्स स्ट्रेट इन लेवल फ्लाइट. देन अगेन दे विल कम डिसेंडिंग. डिसेंडिंग करेंगे, वहां पे जो भी अराइवल का सिनेरियो है, इफ देयर इज एन एयर ट्रैफिक सर्किट तो एयर ट्रैफिक सर्किट ज्वाइन करेंगे, लैंड करेंगे. लैंड करने के बाद अगेन टैक्सी का परमिशन मांगेंगे एंड देन दे विल गो टू द एप्रॉन और दे विल गो टू द बे. अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है. अब इसमें हर एक सेक्शन में हर एक टाइप के कॉल का रिक्वेस्ट अराइज हो सकता है या फिर सिचुएशन अराइजेज हो सकते हैं. क्या? जब आप एप्रॉन पे हो तो आप पुशबैक का परमिशन मांग सकते हो. न्यू स्टूडेंट कैन मेक अ नोट डाउन. आप पुशबैक का परमिशन मांग सकते हो, आप इंजन ग्राउंड रन का परमिशन मांग सकते हो. ईजीआर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंजन ग्राउंड रन. ठीक है. इंजन स्टार्टअप का परमिशन मांग सकते हो, टैक्सी का परमिशन मांग सकते हो. इसके अलावा जब आप एप्रॉन पे पार्क हो तो आपको कुछ इमरजेंसी सिचुएशन दिख सकते हैं. क्या? किसी एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, आपके एयरक्राफ्ट में किसी दूसरे एयरक्राफ्ट ने आके कोलिजन कर दिया, कोलाइड कर दिया, कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आपस में कोलाइड कर गया, कोई ग्राउंड व्हीकल किसी पर्सन को हिट कर दिया, कोई ग्राउंड व्हीकल किसी एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया. तो ये सब सिनेरियो आ सकते हैं वेयर आप एप्रॉन पे फायर पकड़ लिया, आपके नियर बाय किसी एयरक्राफ्ट में फायर है. तो ये सब सिनेरियो आ सकते हैं व्हेन यू आर इन एप्रॉन. तो इन सब के कॉल आपको एग्जाम में ट्रांसमिट करने होते हैं. नाउ जब आप टैक्सी कर रहे हो, ये तो हो गया जब आप पार्क थे. जब आप टैक्सी कर रहे हो उस टाइम पे आपके एयरक्राफ्ट का ब्रेक हीट हो सकता है, गर्म हो जाएगा ज्यादा. ठीक है. आपके एयरक्राफ्ट में कोई पैसेंजर सीवियर सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा. ठीक है. या फिर आपको टेक ऑफ अवॉर्ड करना है ड्यू टू एनी इमरजेंसी सिचुएशन. टैक्सी करते टाइम आपने देखा कि कोई दूसरा एयरक्राफ्ट फ्यूल लीक करते हुए आगे मूव कर रहा है. ड्यूरिंग टैक्सिंग डिंग आपने देखा कि एयरपोर्ट की किसी एरिया में फायर है. अचानक से फ्लॉक ऑफ बर्ड कम अहेड ऑफ यू. फ्लॉक ऑफ बर्ड, अचानक से एक बर्ड का जत्था आपके सामने आ गया. सो दीज सिचुएशंस which can be arises when you are on ground as well as when you are taxiing. इसके अलावा जब आप रनवे के नजदीक पहुंचते हो तो क्या हो सकता है? कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ दिखे. when you are on runway holding point, रनवे के नजदीक पहुंचे तो एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ दिख सकता है. एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग करेगा या फिर रनवे इंगेज रहेगा फॉर सम रीजन, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो टेक ऑफ नहीं कर सकते. विंड्स का डायरेक्शन फेवरेबल नहीं रहेगा. ठीक है. विंड्स का डायरेक्शन अचानक से अपोजिट हो जाएगा. बैड वेदर सिनेरियोज. ठीक है. जब आप टेक ऑफ या रनवे के नजदीक पहुंचे. उसके अलावा जब आपने टेक ऑफ कर लिया तब क्या क्या हो सकता है? आप टेक ऑफ करोगे तो हो सकता है कि आपको एटीसी परमिशन दे अप टू सर्टेन फ्लाइट लेवल ओनली. आपको क्रूज करना था ऑन 35,000 फीट बट एटीसी हैज क्लियर यू अप टू 16,000 फीट ओनली. बाद में और परमिशन देगा, ऐसा नहीं है कि मना कर देगा, बट कुछ ही फ्लाइट लेवल तक आपको क्लियर किया. जैसे ही टेक ऑफ किया सामने बर्ड आ गया, बर्ड हिट. जैसे ही टेक ऑफ किया आपका फ्लैप अटक गया, फ्लैप स्टक. जैसे ही टेक ऑफ किया लैंडिंग गियर इन ही नहीं हुआ, लैंडिंग गियर का इंडिकेशन नहीं आया. टेक ऑफ किया इंजन में फायर है. टेक ऑफ किया इन फ्लाइट शट डाउन, इंजन शट डाउन. तो ये सब सिनेरियो आपको इनिशियल टेक ऑफ के टाइम मिलेगा. उसके बाद क्रूजिंग कंडीशन व्हेन यू आर मेकिंग स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट. स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट बना रहे हो तो आपको पोजीशन रिपोर्ट करना पड़ेगा. उसके अलावा बैड वेदर सिनेरियो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा. बैड वेदर हो गया, केबिन का प्रेशर रिड्यूस हो गया अचानक से ड्यू टू सम मालफंक्शन इन द इक्विपमेंट. केबिन प्रेशर रिड्यूस हो गया, कम हो गया. कोई पैसेंजर बीमार पड़ गया, पायलट या को पायलट बेहोश हो गया. ठीक है. पायलट या को पायलट गॉट सिक. ए मेडिकल सिचुएशंस स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में. स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में यू हैव फाइंड हेवी टर्बुलेंस. स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में आपको किसी ने हाईजैक कर लिया. स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में आपको कोई हवा में ही अरेस्ट कर लिया, इंटरसेप्ट. स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में आपको
एयरप्रॉक्स हो गया, आपके नजदीक से फाइटर जेट का मूवमेंट होना शुरू हो गया, आप डर गए। So these are the scenarios which can be arises in straight and level flight. आप RVSM जोन में फ्लाई कर रहे हो, सडनली ATC वेंट ऑफ, ATC से कम्युनिकेशन टूट गया, तो रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। These are the situation which can be arises when you are making straight and level flight. After this, जब आपका क्रूजिंग लेवल कंप्लीट हो गया तो आप किसी न किसी एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचोगे। आप एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचे, क्या क्या सिचुएशन आएंगे? आपको अराइवल के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है, अराइवल इंस्ट्रक्शन यू विल रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट, जिस डेस्टिनेशन एयरड्रोम पे आप पहुंच रहे थे वहां का विजिबिलिटी रिड्यूस्ड है, वहां का मौसम खराब है, वहां का रनवे वेट है यानी भीगा हुआ है, या फिर रनवे पे कोई काम चल रहा है, मेंटेनेंस, रनवे इंगेज है, कोई एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। जब आप लैंड कर रहे थे उसी टाइम पे ILS का सिग्नल माल फंक्शन हो गया, मिसमैच हो गया। जब आप लैंड कर रहे हो अचानक से फ्लॉक ऑफ बर्ड कम अहेड ऑफ यू, ठीक है। जब आप लैंड कर रहे हो डिसीजन हाइट आपका कैलकुलेट नहीं हो पाया सही से, यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। अराइवल के टाइम पे लैंडिंग गियर का इंडिकेशन आपको नहीं मिल पाया, फ्लैप स्टक हो गया। तो सच सिनेरियोज में अराइज व्हेन यू आर मेकिंग अराइवल। उसके बाद जब आप लैंड कर जाते हो उस एयरपोर्ट पे, तब क्या क्या हो सकता है? जब आप लैंड कर जाते हो, रनवे ओवरशूट या अंडरशूट कर गए, ठीक है, रनवे ओवरशूट या फिर अंडरशूट, रनवे से आगे पीछे हो गया आपका लेंथ। उसके बाद जैसे ही आपने लैंड किया आपको टैक्सी इन का परमिशन चाहिए, उसके बाद जाके पार्क या बे में अपना पोजीशन कर लो, या फिर जैसे आप पार्क किए आपके पैसेंजर में किसी न किसी को सीवियर सिकनेस आ गया, सो यू नीड मेडिकल सपोर्ट। These are the scenarios and these are the questions what actually is being asked in the examination. ठीक है, हर एक फ्लाइट सिनेरियो में क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है, ठीक है, सिंपल लॉजिक, क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है, उसी के रिगार्डिंग पायलट ATC को अपना सिचुएशन कैसे कम्युनिकेट करेगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ RT, दैट्स ऑल, नथिंग अदर देन दिस। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप कि आपको एटलीस्ट सम ऑफ द सिनेरियो समझ में आए होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि ईच एंड एवरी सिनेरियो आप सबको इमीडिएटली याद नहीं हो पाया होगा कि कब कहाँ पे क्या क्या सिचुएशन अराइज होगा, बट समहाउ यू गॉट द ओवरव्यू कि हाउ एंड वेयर व्हाट कंडीशंस कैन बी अराइज्ड। समझ में आया सबको? सर ये वाला सिचुएशन एक बार दोबारा समझा दीजिए। कौन सा सिचुएशन? ये जो सर अभी आप बता रहे थे ना, फ्लैप के बाद से बर्ड स्ट्राइक फ्लैप, थोड़ा सा वो नेटवर्क का इशू था तो सुन नहीं पाया अच्छे से। अच्छा, ठीक ठीक। सो आई वाज सेइंग कि जब आप अपना एयरक्राफ्ट इनिशियल टेक ऑफ करते हो, एनी हाउ सारे कंडीशंस को वन बाय वन हम लोग देखेंगे ही, बट आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि कब कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है, या कब कहाँ पे क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है इन when you are operating aircraft from point A to point B, these two airports. जब आप इनिशियल टेक ऑफ करोगे, बर्ड हिट हो गया, इंजन शटडाउन हो गया, फ्लैप फेल हो गया, लैंडिंग गियर अटक गया, ठीक है, इनिशियल टेक ऑफ के टाइम पे सामने बर्ड आ गया तो बर्ड हिट हो गया, इंजन फेल, फ्लैप स्टक, लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम, इनिशियल कॉल के टाइम पे। उसके बाद क्रूजिंग के टाइम पे कोई पैसेंजर सिक हो गया, पायलट सिक हो गया, सामने बैड वेदर दिख गया अचानक से, हेवी टर्बुलेंस, आपको किसी एयरक्राफ्ट पे किसी ने आपको हाईजैक कर लिया, कोई एयरक्राफ्ट आपको इंटरसेप्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया इन द एयर। सो सच सिनेरियो में अराइजेस व्हेन यू आर इन क्रूज लेवल।
या फिर आपके कोई एक एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट माल फंक्शन कर गया, कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया, आरवीएसएम कर रहे थे, अचानक से ट्रांसपोंडर फेल हो गया, केबिन प्रेशराइजेशन फेल या रिड्यूस्ड, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल या रिड्यूस्ड। सिमिलर व्हेन यू आर डूइंग अराइवल, अराइवल के टाइम पे बर्ड हिट हो गया, सामने फ्लॉक ऑफ बर्ड दिख गया, अराइव कर रहे थे, आईएलएस सिस्टम का सिग्नल वेंट ऑफ, नहीं मिला, या फिर जब आप अराइव कर रहे थे पता चला रनवे इज नॉट फेवरेबल, रनवे वेट है, या फिर रनवे पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तो रनवे इंगेज्ड है, डेस्टिनेशन एरोड्रोम का वेदर खराब है, डेस्टिनेशन एरोड्रोम का क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन एरोड्रोम का विजिबिलिटी रिड्यूस्ड है। So such scenarios may be seen at different phases of flight. One by one, each and every scenarios will be covered further. वही पूरे क्लास का सिलेबस है। हाँ हाँ, सर ये आईएलएस सिग्नल का ये आपने बताया है कि ये कैसे हो सकता है, ओके, लाइक इसमें आईएलएस सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और रेडियो सिग्नल एनीथिंग कैन बी माल फंक्शनड, ठीक है, किसी में भी कभी भी इलेक्ट्रॉनिक एरर आ सकता है। कैसे आ सकता है? वी आर हैविंग लोकलाइजर इन द एयरपोर्ट, ग्लाइड स्लोप एंड मार्कर बीकन, 3 सिस्टम है आईएलएस के अंदर में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडिंग। लोकलाइजर हमको क्या इंडिकेट करता है कि यू आर इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन ऑफ द रनवे सेंटर लाइन, either you are in left or either you are in right or you are on center line to maintain our lateral deviation. Glide slope giving vertical slope guidance and marker beacon is giving us the distance. अगर जब हम रनवे के नजदीक पहुंचे अचानक से लोकलाइजर सिग्नल लॉस्ट, या फिर लोकलाइजर बार में आपको डेविएशन देखने को मिला, मीन्स आपके एयरक्राफ्ट में जो लोकलाइजर का रिसीवर है दैट इज नॉट appropriately able to intercept the signal given by the localizer transmitter which is located on the ground, और अचानक से एयरपोर्ट की बत्ती गुल हो गई तो लोकलाइजर तो स्टॉप कर देगा फंक्शनिंग, पावर कट। सो एनीथिंग कैन बी हैपन। वी आर इन एयरक्राफ्ट, वी आर हैविंग रिसीवर्स विच इंटरसेप्ट द सिग्नल्स, की एयरपोर्ट से जो सिग्नल हमारे पास रेडियो का एयर में थ्रो हो रहा है, that is coming towards us, we are intercepting it, we are catching it, so that can be malfunctioned by the computer failure, that is normal. तो सर उस केस में फिर हम लैंडिंग कैसे करेंगे? visual approach, we'll go for a go around and we'll make visual VFR, approach. सर VFR, हाँ, VFR, ओके सर, visual approach, we'll make visual approach. ओके सर। सर yes सर आपने ये कहा ना कि क्वेश्चन पेपर में जिगजैग में हम लिखते हैं, हाँ, तो वहां पे सर वो पेज की प्रॉब्लम तो नहीं होती, स्पेस की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कम पेज होते हैं तो बिल्कुल नेवर। वो आपको एज मच एज यू वांट दे विल गिव द एडिशनल सीट्स, 2 से 4 सीट आपको देंगे और 2 से 4 सीट में हो जाता है, ठीक है। पेपर देंगे वो एज भी मच मिल एज यू। जाती है क्या सर ये होने के बाद? क्या होता? मतलब ये मान लो फेल हो गई, भर गई, तो वो और भी ले रखा रहेगा। when you reach to the dash, when you reach to the table, एडिशनल पेजेस रहते हैं, 2 पेजेस तो कम से कम देगा ही ब्लैंक, 2 पेजेस आपको ब्लैंक दे दिया मीन्स यू हैव 4 शीट्स, ठीक है, 4 पेज मिल गए आपको 2 पेपर पे, 4 पेजेस इनफ है। सर अगर नहीं इनफ हुआ बाय द मीन्स एनीथिंग, नहीं इनफ हुआ यू कैन आस्क फॉर एडिशनल शीट, दे विल गिव, ओके सर, ठीक है। हाँ, पेज की कोई पाबंदी नहीं, हमने जो 500 फीस पे किया है इसी के लिए तो किया है, सो दैट वो एटलीस्ट हमको 5-7 रुपए का पेज दे पाए, या फिर जो उनके एग्जामिनर उस दिन बैठे हुए हैं एग्जाम लेने के लिए उनका फीस है, तो उनके अरेंजमेंट का और हमारे पेपर का इसी का तो चार्ज है हमारा आरटी का फीस, सो they'll cooperate in this, don't worry. ओके सर, क्योंकि सर मैंने दिया था तो मुझे ऐसे याद है कि मेरा पूरा फेल हो गया था और मैंने
नहीं भरत, हाँ सामने ही लिखा था ये। हाँ, ये देखो होता क्या है, सपोज आप 4 क्वेश्चन का आंसर कर दिए और क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करना आपका बाकी रह गया, प्लस क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, तो एग्जामिनर कई बार बोलता है कि एडिशनल पेज क्या बर्बाद करोगे, क्वेश्चन पेपर पे सामने भी कई बार जगह रहता है तो बोलता है वहीं लिख दो, बट इफ यू इंसिस्ट दे विल गिव कि नहीं सर गिव मी एडिशनल सीट, तो वो देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, वो कई बार बोलते हैं ऐसा कि अब 5 क्वेश्चन के लिए एक एक लाइन के आंसर में क्या तुमको एडिशनल पेज दूं, कहाँ बर्बाद करोगे, एक काम करो इसी पे लिख दो सामने, उनको बस लिखवाने से मतलब है आंसर। ठीक है। एनी हाउ द एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट दे आर वन ऑन वन, तो राइटिंग कहाँ पे लिखा है, किस साइड लिखा है, दैट डजंट इवन मैटर, उनको आइडिया लग जाता है आंसर करते टाइम कि वेदर ही इज गोइंग टू पास यू और नॉट। ठीक है। तो ऐसा कई बार करता है, वो बोलते हैं कि जिधर क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं पे लिख दो, बट इट अप टू यू, इफ यू आस्क कि नहीं सर गिव मी वन एडिशनल शीट दे विल गिव, बट दे विल गिव यू अप्रोप्रिएट प्लेस। ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं कि अब तो तुम्हारा हो गया खत्म अब नहीं लिख पाओगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है। कोई ना कोई प्लेस देंगे, भले कह देंगे क्वेश्चन के ऊपर लिख दो या क्वेश्चन के पास जो खाली स्पेस है वहां लिख दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अब तुम्हारा स्पेस खत्म हो गया अब नहीं लिख सकते। ठीक है। ठीक है। It has और when I had सर हाँ go ahead। अगर मान लो एक क्वेश्चन हमारा छूट जाता है तो हम वापस कर सकते हैं ऐसे? नहीं मान लो समझा हमारा क्वेश्चन। हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए और हमने थर्ड क्वेश्चन किया नहीं, मान लो। नहीं पहुंच ही नहीं सकते, जब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं करोगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने नहीं दिया जाएगा। एवरीथिंग इन क्रोनोलॉजी, असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 बट 3 अगर 4। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा 4 5 अगर आएगा तो उस केस में इंसान क्या करेगा? उस केस में थोड़ा सा लड़ाई करना पड़ता है। हाउ? लड़ाई? हाँ, यू विल इंसिस्ट हिम कि सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल से नो आंसर दिस फर्स्ट, तो उसका थोड़ा बहुत टूटा फूटा आंसर करके आप खुद से बोलो सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार 3 बार बोलोगे तो वो परमिट कर देते हैं कि ओके कम टू द नेक्स्ट, अदरवाइज दे विल से कि नो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, तो टूटा फूटा ही सही आपको क्वेश्चन 3 का आंसर करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। सो इट्स अप टू यू, if you insist them they will move, they'll permit you to move। when I was giving the examination of Hyderabad जहाँ पे मैं फेल हो गया था by the way, so it was my one of my first attempt, मैं कुछ पढ़ के भी नहीं गया था, I was just went to look at the examination type, तो मुझे नहीं आ रहा था आंसर सेकेंड एंड थर्ड का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे, तो इसका तो मैंने जैसे तैसे आंसर किया, सेकेंड का व्हेन आई वाज आंसरिंग आई टोल्ड कि सर कैन आई आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो नो सेकेंड करो, आर्टिकल रूल नहीं पता है क्या, यू नीड टू आंसर सेकेंड फर्स्ट, सो आई हैड गिवन रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देन ही टोल्ड कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, सो आई टोल्ड कि सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ही टोल्ड ओके गो टू द नेक्स्ट, सो आई मूव टू द थर्ड, देन थर्ड भी मैंने जैसे तैसे मतलब खींच दिया, देन मूव टू द फोर्थ, फोर्थ में मेरा पेज खत्म हो गया, आई आस्क्ड फॉर द पेपर, ही टोल्ड कि वही लिख दो, पहले फेल हो चुके हो, एक्स्ट्रा पेज देगी तुमको क्या ही कर दूंगा। ठीक है। सो ही टोल्ड कि क्वेश्चन के पास ही लिख दो जो लिखना है, सो यू कैन ऐसे नॉट मूव डायरेक्ट टू बोल देते हैं अगर उन्हें लग गया कि मतलब ऐसा सामने वाला बंदा अगर एबल नहीं है तो? बिल्कुल बोल देते हैं कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन सही नहीं गया, अब कहाँ स्पेस बर्बाद करेगा, इधर ही लिखो। ठीक है। और मतलब फिर को सेकंड क्वेश्चन करने को सोचे अभी आ गया तो फिर वापस नहीं आ सकते इसे? No, no, you can't return. Even when I was in Delhi, that there I had passed. Question number second, I told ना, question number second completely washed out. पता नहीं क्या हो गया था, मेरा पूरा मिस्टेक हो गया, 0 नंबर मिले थे। There एग्जामिनर टोल्ड मी कि ऐसा कैसे तुम आंसर कर दिए, तुमने तो पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, मैंने कुछ एटीसी को कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर दिया था। देन आफ्टर डिस्कशन आई हैड आस्क्ड हिम कि सर एक बार फिर से करूं क्या, मींस शैल आई री आंसर द क्वेश्चन नंबर सेकंड
he told no. ठीक है, and this is the rule, you cannot re-answer. आपसे जो मिस्टेक होगा एग्जामिनर आपको तुरंत उसका राइट आंसर बताएगा, बिकॉज एग्जाम दे आर रियलिस्टिक पीपल. वो बोल देंगे कि तुमसे यहाँ ये मिस्टेक हुआ, ये गलत एटीसी तुमने चुना. ठीक है, सो इमीडिएटली आफ्टर द आंसर दे विल डिस्कस द थिंग. अगर कुछ गलत है तो भी बोलेंगे, सही है तो भी बोलेंगे कि इसको क्यों कॉल किया. या फिर व्हेन एवर यू आर डूइंग सपोज आरसीएफ, तो वो बोलेंगे कि 2 बार कॉल अनाउंस करना था, आपने 1 बार क्यों किया. तो जो भी आंसर में आपके फॉल्ट रहेगा, जो भी शॉर्ट कमिंग्स रहेंगी, तुरंत आपको बताएगा एग्जामिनर कि तुमसे इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुआ. सर ठीक ये है, हर एक क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन रहता है, मतलब वो बताते हैं हमें हाँ 25 मिनट बिल्कुल के अंदर ही. बिल्कुल 25 मिनट के अंदर ही वो बताएंगे, तुरंत बता देंगे कि तुमसे ये नहीं बोलना था, ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था. ठीक है, एंड इफ यू आस्क हिम कि शैल आई री आंसर, दे विल से नो, मौका गया, तुम्हारा नंबर तो कटा. मतलब सर जो एक बार बोलना है वो सही बोलना है, बस एक ही बार बिल्कुल, बोलना है. हाँ. ठीक है, सो बैक जाके आंसर नहीं कर सकते, दोबारा से आंसर नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते. अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं आया तो सेकंड पे ही लटक जाओगे. एक स्टूडेंट लटका है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही रख दिया उसको, और लास्ट के 10 मिनट में फिर उसको फ्री किया कि चलो सेकंड थर्ड का आंसर कर लो, फर्स्ट में ज़्यादा टाइम बीत गया आपका. तो 15 मिनट तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही लटका के रखा उसको. सो देयर यू नीड टू प्ले स्मार्टली. आपको पता है कि बिना आंसर की वो आगे जाने नहीं देगा. क्या कर सकते हो, जानबूझ के आंसर करो, भले गलत हो, 4-5 पैराग्राफ का कुछ से कुछ बोलो. आफ्टर ऑल लास्ट में उसको बोलना ही पड़ेगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो बोलेगा ये आंसर गलत है, तो ओके सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो दिस इज गलत. ठीक है, आई नो दिस इज रॉन्ग. डन. So you need to play with the plan every time. That's what I told na. RT is a game of plan and strategy. If you don't have it, you will lose. Simple. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अटका लिया, आगे नहीं बढ़ने दे सकता. रिक्वायरमेंट क्या है, आंसर आना चाहिए. गलत सही कौन पूछ रहा है, गलत करो, आगे बढ़ो. ठीक है. So, but in the complete session, we'll practice everything. Nothing is too difficult. कुछ भी छूटने जैसा नहीं होता है. If you are an active-minded person, हर एक सिनेरियो का आपका कुछ ना कुछ आंसर बन के आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाओगे. ठीक है. So now the time came for the questions. ठीक है, how the questions is being given in the examination in part 1 and how to write the answer. But before moving there, we need to write a flight plan. Today I am giving an example how you are going to write the flight plan in the classroom daily. Okay, tomorrow onwards you all are going to give flight plan with whom I can move ahead with the questions. कल से आप लोगों को flight plan देना पड़ेगा. ठीक है, so I am showing you how you are going to give a flight plan. What are the 13 parameters necessary for the flight plan? You can see on the right side of the screen, right? Screen visual है सबको? So the first one is aircraft identification, call sign. So Victor Tango Romeo Sierra Mike. सेकेंड वन इज फ्लाइट लेवल, यानी क्रूजिंग फ्लाइट लेवल आपका क्या रहेगा. सो माइन विल बी फ्लाइट लेवल 370. सो फ्लाइट लेवल 370 इज क्रूजिंग अल्टीट्यूड. वेट टर्बुलेंस मीडियम. डिपार्चर एरोड्रोम मुंबई. ठीक है, डिपार्चर टाइम 1030. फ्लाइट रूल IFR. अराइवल एरोड्रोम दिल्ली. ठीक है, टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड. अल्टरनेट एरोड्रोम लखनऊ. ठीक है, रूट रोमियो 460. दिस टाइम आई एम सेइंग इट हाइपोथेटिकली, अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूं, बट कल से चार्ट के हेल्प से बोलेंगे. रूट रोमियो 460. इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड. एयरक्राफ्ट टाइप एयरबस 320. Any other information, so any other info VIP on board.
ठीक है. So look at this flight plan. How many information we are having? We are operating an aircraft Victor Tango Romeo Sierra Mike on flight level 370. Wake turbulence is medium. Mumbai to Delhi. Alternate is Lucknow. At 1030 under flight rule IFR. Scheduled flight route Romeo 460. All equipment standard. Airbus 320 is our aircraft type and VIP on board. Got it? ऐसे ही कल से आपको फ्लाइट प्लान देना है. इनिशियली यू कैन टेक रेफरेंस विद द नोट, जैसा कि मैंने अभी लिया. 1 बाय 1 देख देख के आप बोलो. धीरे धीरे आपको बिना देखे आपको बोलने की आदत पड़ जाएगी. ठीक है. सो कल से यू नीड टू गिव मी फ्लाइट प्लान. आई कैन आस्क एनी वन ऑफ यू. यू कैन टेक रेफरेंस विद द नोट इनिशियली, और इसी तरह से 13 पैरामीटर मुझे बताओगे हाइपोथेटिकली आपके हिसाब से कि कौन सा आपका एयरक्राफ्ट रहेगा. अप टू यू. कहाँ से कहाँ तक आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना चाहते हो, अप टू यू. ठीक है. किस अल्टीट्यूड पे फ्लाई करोगे, क्या क्या रहेगा, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा. गॉट इट? सर ये जो एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन है इसमें हम ये भी बोल सकते हैं ना, एयर इंडिया 619 ऐसे करके बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई पूछने की बात नहीं, कल ही तो बताया था. यस, गो हेड. अल्फा ब्रावो चार्ली. सर इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं क्या? मतलब पहले हमने कॉल साइन बोल बिल्कुल. दिया और फिर डेफिनेटली हमारा डेफिनेटली 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 यू कैन समराइज दिस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग. आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको समराइज कर लो, विच एवर सूट्स यू. ठीक है. आपको अपने एयरक्राफ्ट का प्लान अपने हिसाब से समराइज कर सकते हो. यहाँ से स्टार्ट करो. एयरबस 320 ऑपरेट करेंगे. विक्टर टैंगो रोमियो शेरा माइक कॉल साइन. वेक्टर टर्बुलेंस मीडियम. शेड्यूल एयरलाइन है. अंडर IFR फ्लाई करेंगे. दिल्ली से मुंबई जाना है. देखो जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही लिख रहा हूँ. दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई नहीं जा पाया तो पुणे जाऊँगा. 10:30 पे डिपार्चर रहेगा. रोमियो 460 इज माई रूट. ऑल इक्विपमेंट्स आर स्टैंडर्ड. Any other information? VIP on board. Cruising altitude, flight level 360. This is also 13 information and this is also correct. चलेगा, शफल कर सकते हो. कोई ऑर्डर नहीं है कि ऐसे इसके बाद यही होना चाहिए. नथिंग. अंडरस्टूड? सर तो अपने अंडरस्टैंडिंग हिसाब से फ्लाइट प्लान आप अपने हिसाब से समराइज कर सकते हो, जो आपको सूट करे. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फ्लाइट प्लान अगेन. ठीक है. एंड एनी वन ऑफ यू कैन मेक अ ट्राई. ठीक है. जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप लोग अगर कोई चाहो तो यू कैन मेक अ ट्राई टू गिव मी अ फ्लाइट प्लान बेस्ड ऑन विच आई विल गिव द क्वेश्चंस. ठीक है. एनी वन कैन मेक अ ट्राई. हाँ. To write the flight plan, use the chart number 1 today. ठीक है. मैं चार्ट नंबर 1 को स्क्रीन के साथ शेयर करके रखता हूं. जिसके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, दे कैन हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन. ठीक है. चार्ट नंबर 1, और उसके रिगार्डिंग आपको एक फ्लाइट प्लान देना है. जस्ट अ सेकेंड. Chart number 2, I told, right? 1. Make it. हाँ, फर्स्ट you can. चलो फर्स्ट से ही कर लो. फर्स्ट से ही कर लो. Give me a plan. Somebody can make a try. I can try, sir. Definitely, anyone can. Okay, sir. Delhi Tower. दिल्ली टावर Tango क्यों? Alpha प्लान Bravo पूछ रहा हूँ. Charlie. फ्लाइट प्लान पूछ रहा हूँ. ओके ओके. तो सर हमको जब फ्लाइट प्लान देते हैं, ATC को बोलते हैं, तो मतलब ATC को ही बताएंगे ना सर? किसको बताएंगे? ATC को नहीं बताया ना. ATC को फ्लाइट प्लान नहीं बताया जाता है. ठीक है. फ्लाइट प्लान हार्ड कॉपी ईमेल के थ्रू सबमिट होता है. उसका अप्रूवल
डायरेक्ट आता है। मैं यहाँ पे आपसे फ्लाइट प्लान पूछ रहा हूँ क्योंकि फ्लाइट प्लान ही आपका क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो जैसा मैंने अभी ब्रीफ किया ना कि आपका एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट करोगे, वो आपको बताना है। ओके सर, हम्म, ठीक है। और विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ऑन फ्लाइट लेवल 360 विथ टर्बुलेंस मीडियम और ऑपरेटिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, ठीक है। अल्टरनेट एरोड्रोम लखनऊ, ठीक है। ऑन 0900 ठीक टाइम, है। फ्लाइट रूल इंडिया, यंग, अच्छा ठीक है, ठीक है। IFR, इसको आप बोलो सिंपली IFR, लिखो आई, बोलो IFR, IFR। चलेगा। ओके सर। अराइवल टाइम इज अराइवल टाइम नॉट रिक्वायर्ड। फ्लाइट प्लान 1200। में अराइवल टाइम नहीं, फ्लाइट प्लान में अराइवल टाइम नहीं पड़ता है, फ्लाइट प्लान में नहीं पड़ता है। ओके सर। शेड्यूल फ्लाइट रूट विस्की 13, Whiskey 13, वेरी गुड। इक्विपमेंट स्टैंडर्ड। नाउ विस्की 13 के बाद आप देखो, इसी रूट को लिखने में ना थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। जब आप लिखते हो अहमदाबाद से विस्की 13, तो ये कहाँ तक जाता है? उदयपुर तक, राइट? मैं स्क्रीन पे एनोटेशन कर रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक। अहमदाबाद से उदयपुर गया विस्की 13, उसके बाद उस रूट का नाम है विस्की 13 नॉर्थ। तो रूट कैसे लिखना है देखो ध्यान से, विस्की 13 कोमा उदयपुर कोमा विस्की 13 नॉर्थ। जब भी आप रूट चेंज करते हो ना, तो जिस स्टेशन से आपने रूट चेंज किया उसको मेंशन करना रहता है इन द रूट सेक्शन ओनली। विस्की 13 से उदयपुर तक, उदयपुर से विस्की 13 नॉर्थ। अगर सपोज बीच में और चेंज हो जाए कि विस्की 13 नॉर्थ जयपुर तक, जयपुर के बाद विस्की 13 साउथ, तो ऐसे ही कोमा लगा लगा के लिख देंगे। गॉट इट? यस सर। So what will be the correct route? Whiskey 13 Udaipur, Whiskey 13 North. Understood? Very good. यस सर। Move to the others. Sir, I can try. No, let him finish Aircraft. first. Let him finish. एयरक्राफ्ट एयरबस 320 और VIP ऑन बोर्ड। ठीक। VIP on board. Before saying VIP on board, mention it. क्या? Any other information? VIP on board. ठीक है? Now, let me review your plan. How much parameters you have given? You are operating Victor Tango Alpha Bravo Charlie aircraft Airbus 320, flight level 360 with turbulence medium, Ahmedabad to Delhi, alternatively Lucknow. 0900 is your departure time. Flight rule IFR, scheduled airline, route is Whiskey 13 North. Any other information? Nil. What you have missed? Anybody can say? 12 ही हुए, 13 क्या मिस हो गया? अराइवल क्या है? क्या है? क्या है? शेड्यूल वाला सर, शेड्यूल फ्लाइट। S is for schedule only. सर इक्विपमेंट स्टैंडर्ड करके कुछ नहीं बोला। Equipment में sure, yes, very good. Equipment standard. Done. Sir, अब I ये हो can गया। try. हाँ, you can also give a call. Good one, Alpha Bravo Charlie. Nice one. You can also try Sierra Charlie Mike, right? Chart number Yes, 1 sir. only. You can give a plan. ठीक है? Everyone had to give a call. आप घबराओ नहीं, कल से जब मैं कॉल मांगूंगा तो कोई
आंसर देने के लिए नहीं रहता है, ठीक है। सब लोग बचते हैं बिकॉज समबडी कैन ट्रैवलिंग करते टाइम कोई लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों का मेंटेनेंस चालू होता है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ज्वाइन करते हैं। सो आएगा, अकेले कोई बच जाओगे, एक ही दिन में खाली वही आंसर देते रहता है। सो योर टर्न विल कम। ओके, यू कैन मेक अ ट्राई, डोंट वरी। Victor Tango Sierra Charlie Mike, cruising flight level 360, with wake turbulence medium, arriving, departure from Delhi to Ahmedabad. लिख रहे हो या खाली बता रहे हो? हैव यू रिटन इन द लिख पेपर? रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ, साथ में लिख वेरी रहा हूँ गुड। सर। दिल्ली टू अहमदाबाद। Delhi to Ahmedabad, standard, arrival time 10:30 under अराइवल टाइम नहीं IFR. होता, अराइवल टाइम नहीं है, आराम आराम से, आराम आराम से। Departure sir. हाँ, टाइम ऑफ डिपार्चर 1030, 10:30 नहीं। 1030 under IFR. My route, our route follows, चलेगा, रूट खाली बोलो, रूट समझ जाएगा। हाँ, route Alpha 474 to Jaipur to Whiskey 13 South, Udaipur to Whiskey 13. ठीक, वेरी गुड। with standard equipment, bus 320. Any other information, sick passenger board. एनी अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला? मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड। medical passenger on board. वेरी गुड। I have written some of the parameter, कुछ तो मिस हुआ है। I am explaining it again and help me with writing क्या मिस किया आपने। You have told Sierra Mike Charlie on flight level 360, wake turbulence medium, Delhi to Ahmedabad, equipment standard, departure time 1030 under IFR, route information is such and such, aircraft type Airbus 320, any other information, medical passenger on board। दो पैरामीटर मिस हुए हैं। Who is going to tell me क्या क्या मिस हुआ? सर मुझे पता किया क्या है? अल्टरनेट एरोड्रोम सर, इंदौर। ठीक है। और क्या मिस है? या मेरे नंबरिंग में कुछ मिस्टेक है? टाइप ऑफ फ्लाइट, शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड? ओके, शेड्यूल। यस सर, शेड्यूल्ड, ठीक है। नाउ सी, क्या है कि मैं तो 2-2.5 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है आप क्या मिस कर रहे हो, ठीक है। स्टिल मैं एक एक पैरामीटर को नंबर देके आपके सामने दिखाता हूं कि कैसे फ्लाइट प्लान को प्रूफ चेकिंग करनी है। सिमिलरली यू शुड डू इन योर नोटबुक, ठीक है। मुझे पता है आपसे क्या मिस हुआ है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं और नंबरिंग दे दे के कि नंबर 1 पे आपने कॉल साइन बोला, नंबर 2 पे फ्लाइट लेवल, नंबर 3 पे वेक टर्बुलेंस। इसी तरह से आपको हर चीज प्रैक्टिस करनी है इन आरटी। कभी भी एक बार में कॉल करके अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं होना है, ठीक है। जो कुछ भी आंसर करो एक बार पढ़ो शुरू से लास्ट तक और थॉरो पढ़ो। भले उस वर्डिंग के नीचे आपको अंडरलाइन करना पड़े, सर्कल करना पड़े, कट करना पड़े, थॉरोली पढ़ना है। आगे हम लोग और देखेंगे कि हाउ टू प्रूफ चेक योर आंसर। अपना मिस्टेक खुद से एनालाइज करोगे, यू विल लर्न बेटर देन एवर, ठीक है। जब भी आप फ्लाइट प्लान बोलो नंबरिंग दे दे के खुद से, ठीक है, अपने आप में चेक करो ऐसे नंबर बिठा बिठा के। और कि विक्टर टैंगो से मालिक चार्ली, फ्लाइट लेवल 360, वेक टर्बुलेंस मीडियम, दिल्ली टू अहमदाबाद, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, डिपार्चर टाइम 1030, IFR, रूट, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, एनी अदर इंफॉर्मेशन। यानी 11 आपने लिखा। दो कौन कौन सा मिस हुआ भाई? ध्यान करो एक बार फिर से। अच्छा, शेड्यूल एयरलाइन मिस कर दिया, ठीक है। और क्या मिस किया? अल्टरनेट एयरड्रोम मिस कर दिया। तो जब तक आपके नंबर काउंट 13 पे नहीं पहुंचे तब तक सेटिस्फाई नहीं होना है। गॉट इट? So like this, whenever you are giving a plan,
खुद से रिव्यू करना है, ठीक है। लेटर ऑन वी लर्न हाउ टू रिव्यू योर आंसर, अपना आंसर रिव्यू करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द प्लान, नाउ लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है। इंटरनेट मिस हो गया, ठीक है। Yes, sir. Now we'll look at the question. सर एक Now I'm writing. हेलो Yes, yes, go ahead. सर, ये मैंने हाँ, तो मैंने पहले वो क्लास ली थी ना सर, उसमें उन्होंने बताया था कि एटीसी कैन आस्क यू फॉर फाइल फ्लैट प्लान। एग्जाम में कोई नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा। ATC will never ask you about flight plan. The main question is the thing जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन 5 में वो एक फ्लाइट प्लान आपको देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ कि अभी मैंने डिपार्चर एरोड्रोम क्या बताया, अभी मैंने डेस्टिनेशन एरोड्रोम क्या बताया, और जस्ट टेक योर सिनेरियो और योर एक्सपीरियंस, जैसा कि आपको सर ने बताया कि ATC में आस्क यू फ्लाइट प्लान, तो फ्लाइट प्लान आपके सामने है, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? यू कैन वो समराइज, तो बता राइट? पाएंगे। हाँ, फ्लाइट प्लान इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन समराइज कि आई एम ऑपरेटिंग एन एयरक्राफ्ट विच इज एयरबस 320, ठीक है। Airbus 320 going from Delhi to Ahmedabad, flight level 360, Victor Tango Sierra Charlie Mike is my call sign, so and so detail. Done? सर इसमें सर एस्टिमेट वगैरह नहीं लिखना ना फिर? उन्होंने नहीं, ऐसा फ्लाइट प्लान लिखवाया था एस्टिमेट। नेवर नेवर, एस्टिमेट्स एंड ऑल ये सब पार्ट ही नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है। और वो सर जो फॉर्मेट है वो आरटी के बुक का एक ही है क्या सर? वो जो फ्लाइट प्लान जो आप yes yes yes, that belongs to ICAO फ्लाइट प्लान ओनली। ICAO फ्लाइट प्लान में 18 से 22 इंफॉर्मेशन रहते हैं, बट इन द एग्जामिनेशन जो आपको क्वेश्चन रहता है उसमें 13 पैरामीटर्स ही रहते हैं। जस्ट लुक एट द एग्जामिनेशन शीट, आई विल शेयर क्वेश्चन, ठीक है। आई एम शोइंग यू द प्रीवियस क्वेश्चन सो दैट यू कैन टेक रेफरेंस विद दैट। चलो इसी का लेते हैं। You can see how many parameters are written here. These are the 13 parameters only, ठीक है। क्या आपका आइडेंटिफिकेशन, एयरक्राफ्ट टाइप, डिपार्चर एरोड्रोम, रूट, डेस्टिनेशन एरोड्रोम, फ्लाइट रूल, वेक टर्बुलेंस, टाइम ऑफ डिपार्चर, टाइप ऑफ फ्लाइट, इक्विपमेंट, लेवल, अल्टरनेट एरोड्रोम एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। हो गया खत्म 13 पैरामीटर। तो एग्जाम में 13 पैरामीटर ही रहता है, इसके अलावा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि यू नीड टू प्रैक्टिस विद द 13 पैरामीटर्स। हाँ, यू मे हैव अ डाउट कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, नहीं, ये मेरा लिखा, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है ही नहीं, ये रियल टाइम का क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने लिख के शेयर किया या किसी दैट मे बी बिलोंग्स टू एनी अदर ट्यूटर, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो एग्जाम में यही 13 पैरामीटर्स आते हैं, इससे इफ बट कुछ सोचना ही नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इन्हीं 13 पैरामीटर्स को समझना है बिफोर गोइंग फॉर द आंसर। एंड एज यू टोल्ड कि एग्जामिनर क्वेश्चन में फ्लाइट प्लान पूछ लेगा, उसको और कोई काम नहीं है। 5 क्वेश्चन 25 मिनट में, उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 क्वेश्चन को 25 मिनट में फिनिश करो। आपसे ज़्यादा उसको जल्दी रहती है कि कैसे एग्जाम दे के भागे, और वो तो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं, हर बार सेम चीज़ को उनको आगे आगे पता रहता है आंसर, और वो बस स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते जाते हैं कि कौन कैसा आंसर कर रहा है। तो उनके आप पेशेंस लेवल को समझो। अगर एक ही चीज़ आपको 5 बार पढ़ाने बोलूँगा ना, आप इरिटेट हो जाओगे। आपने, मैं खुद, जब मैं कोई टॉपिक पहली बार एक्सप्लेन करता हूँ तो सपोज आई हैव टोल्ड 20 पैराग्राफ, लेकिन जब आप बोलते हो कि सर एक बार फिर से पढ़ाओ, तो मैं 15 लाइन में ही फिनिश कर देता हूँ, या फिर ज़्यादा डिस्कस करते करते 25 से 30 लाइन चला जाता हूँ। सेम चीज सेम टाइम फ्रेम में रिपीट करते करते आदमी इरिटेट हो जाता है। तो एग्जामिनर के पास 5 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा।
एंड एज साइड सर टोल्ड कि फ्लाइट प्लान पूछता है, यस। क्वेश्चन नंबर 5 में कई बार उसका क्वेश्चन ही यही रहता है कि फ्लाइट प्लान को डिस्क्राइब करो। उस टाइम पे वो आपको पेन पेपर रखने बोल देगा और रैंडम क्वेश्चन पूछेगा कि आपका डिपार्चर एरोड्रोम क्या था, आपका डेस्टिनेशन एरोड्रोम क्या था। तो जब आप 1 से 4 क्वेश्चन तक उसी फ्लाइट प्लान को यूज कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। या फिर एक फ्लाइट प्लान वो रेंडमली पीछे से नरेट करेगा मीन्स वर्बली बोलेगा और आपको बोलेगा कि लिखना नहीं है। ठीक है, तो इस 13 पैरामीटर्स को वो बोलेगा कि अच्छे से सुनो। उस केस में वो 2 बार रिपीट करता है हर चीज को, 2 बार बोलेगा हर चीज को, ताकि आप अच्छे से सुन सको। फिर वो आपसे 5 रैंडम क्वेश्चन पूछेगा कि अभी जो मैंने फ्लाइट प्लान दिया तो उसमें कॉल साइन क्या था, उसमें फ्लाइट लेवल क्या था। ठीक है, बट ये वंस इन यू कैन से कि वंस इन अ सेशन वाला सिनेरियो है। किसी सेशन में पूछ दिया वही बहुत बड़ी चीज है, पूछता ही नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन किस्मत खराब है तो पूछ सकता है। आई कैन नॉट से ऑन दैट बिकॉज मेरा एक स्टूडेंट उसमें फंस के आया है। ठीक है, सो ही शेयर्ड द एक्सपीरियंस कि सर ऐसा पूछ दिया, जो कि फ्रीक्वेंट नहीं है, तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। अंडरस्टूड? सर सर जो 18 से आप हाँ 20 पैरामीटर बता रहे हो ना, जो तो हाँ हाँ। उसमें एडिशन में क्या सर, एस्टिमेट वगैरह है क्या सर? एस्टिमेट, दो आपने एस्टिमेट फ्लाइट हो प्लान गया, आपने एंड्योरेंस। आप आपने फ्लाइट प्लान का क्लास मिस किया क्या? उधर तो मैंने फ्लाइट प्लान पूरा एक एक स्टेप डिसाइड किया था, एक एक चीज बताया था। नहीं नहीं, अभी हाँ हाँ, ये सर देखा याद था। आया? याद आया? हाँ हाँ, यस सर, यस सर। एक एक चीज बताया था ना, तो उसमें एयरक्राफ्ट का कलर कौन सा है, कौन कौन से इमरजेंसी इक्विपमेंट हैं, लाइफ सर्वाइवर जैकेट क्या सब है, टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम क्या है। जस्ट हैव ए लुक अगेन, देखो, दिखा? यस सर। हम्म, ठीक है, 22 पैरामीटर होते हैं टोटल, अगर काउंटिंग में जाए तो टोटल 22। तो ये सारे एडिशनल रहते हैं, बट एग्जाम में 13, उससे ज्यादा नहीं रहता है। So we'll have a look on question. Very first and very popular question we'll ask. With this flight plan, we are on Delhi, right? Chart number 1. So let me open the chart number 1 for you. Chart number 1. Obtain ground run permission. ठीक है, obtain ground run permission. ठीक है, I am giving you the call. Everybody shall make a note. पेन एंड पेपर के साथ अवेलेबल रहो और अपने बुकलेट में लिखो। ठीक है, नाउ माइक। ठीक है, नाउ सबसे पहले स्क्रीन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, एक साइड ट्रांसमीटर, एक साइड रिसीवर। डन? नाउ विल राइट वन बाय वन। दिल्ली ग्राउंड Victor Tango Sierra Charlie Mike on 121.9er Airbus 320 wake turbulence medium, current position on apron 3 stand 5, request engine run up permission, duration 10 minutes। हो गया। क्वेश्चन क्या था? ऑब्टेन ग्राउंड रन परमिशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली ग्राउंड को हमने कहा दिल्ली ग्राउंड दैट इज W1 एंड देन वी हैव टोल्ड दिस इज विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक W2। दिस इज मैंने बोला नहीं, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं। दिस इज दैट इज नहीं बोलना है। सियरा चार्ली माइक, वी आर यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी 121.9er। हो गया। नाउ W3, अब दिखा कि क्यों हम W3 लास्ट में कहते हैं। पर्पस हमारा लेंदी है तो सबको लास्ट में उठा के पटक देंगे।
We are operating an aircraft Airbus 320 that is having wake turbulence medium. Wake turbulence बोलना मैंडेटरी है, क्यों? क्योंकि हमारा इंजन ऑन होने जा रहा है. Wake turbulence medium. Current position is on apron 3 stand 5. अपना पोजीशन तो बताओगे कि कहाँ पे इंजन चालू करोगे. Request engine run up permission. इंजन रन करने का परमिशन दीजिए. कितने देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? ड्यूरेशन 10 मिनट्स. ठीक है. सी, जैसा मैंने अभी अंडरलाइन कर करके रिव्यू किया ना, जब भी आप आंसर करोगे इसी तरह से अंडरलाइन करके अपने आंसर को ही रिव्यू करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपसे क्या मिस हुआ. ठीक है, या फिर क्या आपसे मिस्टेक हुआ, उसको करेक्ट कर पाओगे कि नहीं. देखो, इस कॉल में मेरे से एक चीज मिस हुआ, मुझे पता चला. क्या? जब मैंने रिक्वेस्ट इंजन रन अप माना, यहां पे हम लोग बोल सकते थे ऑन आइडल पावर. ये मुझे पता चला कब? जब मैंने रिव्यू किया तब. नहीं रिव्यू करता तो मुझे पता नहीं चलता. अंडरस्टूड? So what could be the final answer? And that could be the corrected one. Request engine run up permission. ठीक है, request engine run up permission on idle power. Duration 10 minutes. हालांकि वो चीज मिस नहीं किया, बट मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्या मिस हुआ. ठीक है, रिव्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे आइडल पावर बोलते तो ज्यादा अच्छा था. तो ज्यादा अच्छा था या ज्यादा अच्छा होता, ये आपको कब पता चलेगा? जब अपना कॉल खुद से रिव्यू करोगे. तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम से आप वो मिस्टेक नहीं करोगे. ठीक है. कई बार वेक टर्बुलेंस लोग बोलना मिस करते हैं, दैट इज कॉमन. नहीं बोलते हैं, मिस हो जाता है. तो जब आप रिव्यू करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा अरे वेक टर्बुलेंस बोल सकते थे. सो नेक्स्ट कॉल से ना आप वेक टर्बुलेंस पे आपका ध्यान जरूर रहेगा कि पिछले में मैंने मिस किया था, अगले में नहीं करूंगा. ठीक है. सो दिस इज द कॉल स्ट्रक्चर फॉर रन अप. अब इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलेगा एटीसी? एटीसी माइट टोल्ड. ठीक है, एटीसी माइट से विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक दिल्ली ग्राउंड इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड. यही बोलता है ना. उसके बाद क्या बोलता है? लंबी चौड़ी फेंकेगा. टेम्परेचर ये, ह्यूमिडिटी वो, टेक ऑल नेसेसरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस. ठीक है, बट एग्जाम में आपको एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो सिंपल बोलेगा इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड. ठीक है, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन. वेरी सिंपल. बट रियल टाइम सिनेरियो में वो लंबा प्रोटोकॉल है. टेम्परेचर ये, ह्यूमिडिटी इतना, टेक ऑल नेसेसरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, ग्राउंड सपोर्ट्स एंड ऑल. ठीक है, एंड देन बोलेगा रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन. बट एग्जाम में आपको 4 चीज बोलेगा. नाउ जब वो रिप्लाई किया विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक इज W1 फॉर हिम, whom are he calling? You. And who is he? Delhi ground. What he is saying? W3. आपका कोई एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी नहीं है, अदरवाइज वो आपको भी बोलता फ्रीक्वेंसी का नाम लेके. तो W4 एग्जामिनर के लिए कट जाता है. फिर उसने हमको क्या बोल दिया? रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन. तो हम लोग को भी बोलना पड़ेगा आगे. हाउ विल कैन मूव अहेड? सबसे पहले उसने बोला इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड. जब भी किसी भी टाइप का परमिशन आए, जब भी किसी भी टाइप का डेटा आए, पैरामीटर आए, उसको रिपीट करेंगे टू बी डबल श्योर. ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन हो. उसने बोला नॉट अप्रूव्ड, हमको सुनाई दिया अप्रूव्ड, हमने इंजन ऑन कर लिया, कांड हो गया. तब एटीसी वाला बोलेगा अच्छा, ध्यान से सुनते भी नहीं हो. और रीडबैक भी नहीं दिया. रीडबैक इसीलिए दी जाती है कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो रोक दो पहले ही, नहीं तो मैं तो इंजन चालू करने जा रहा हूं. अब पीछे से सेस्ना टेक ऑफ कर जाए या कोई C90 V200 टेक ऑफ कर जाए, आई डोंट केयर. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू गिव अ रीडबैक ऑफ दिस इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड. फिर उसने क्या बोला? रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन. नाउ वी हैव 2 थिंग्स. हमने पढ़ा था विल को, तो आइदर वी कैन से विल को or we can say will report after completion. Victor Tango Sierra Charlie Mike. इसका क्या मतलब हो गया? We are closing with the call sign.
गॉट इट? देखो एक लाइन से समझाता हूं। दिस वॉज अ ग्राउंड रन कॉल, हमने कॉल रिक्वेस्ट किया पूरा, राइट? उसका रिस्पॉन्स आया। देखो जहां पे हमारा ये लेवल खत्म हुआ हमने उसके नीचे लिखना शुरू किया, ठीक है, क्रॉस वर्डिंग नहीं है कहीं भी। फिर जहां पे इसका रिस्पॉन्स खत्म हुआ हमने उसके नीचे लिखना शुरू किया। तो इसी तरह से जिगजैग मोशन में लिखना है, ठीक है, जिगजैग। समझ में आया सबको ये कॉल? यस सर। यस सर। सो दिस जो वाज द आपने कॉल रिव्यू रिगार्डिंग, बताया हाँ हाँ, वो सर एग्जाम में तो नहीं करना ना, यहीं पे नहीं ये प्रैक्टिस के मैं लिए आपकी करना है सर। प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए, हाँ क्लास में प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में तो एक बार जो मुंह से निकला वो निकला, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। सर ठीक। नाउ फ्लाइट प्लान आप सबने नोट किया? नहीं नोट किया तो अभी नोट कर लो, बिकॉज इसी फ्लाइट प्लान से क्वेश्चन रहेगा फर्दर। यस गो हेड। सर हम एग्जाम में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना, जैसे ये सब अपना फ्लाइट प्लान, क्या लिखना तो होगा नहीं, क्वेश्चन से या फिर स्टार्ट उसको करेंगे? रीड? नहीं नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्लाइट प्लान आपको सामने में ओके लिखा सर। रहेगा, तो 13 पैरामीटर दिखा रहेंगे। अब क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेज पे यहाँ पे फ्लाइट प्लान लिखा है और आंसर आपको इसके पीछे लिखना पड़ सकता है। पढ़ सकता है क्या? पढ़ेगा ही। अब अगर आपका दिमाग इतना तेज है, ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर इंटेलिजिबिलिटी टोटली। इफ यू आर अ शार्प स्टूडेंट कि आप 13 पैरामीटर्स पे एक नज़र मार लें तो आपको 13 के 13 पैरामीटर्स याद हो गए, या फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप 13 पैरामीटर्स को इन अ सिंगल लुक समझ सकते हो, तब तो आप फ्लाइट प्लान देख के आंसर कर दोगे चाहे वो किधर भी लिखा रहे। बट विल टेक एन एवरेज स्टूडेंट सिनेरियो, आपको 13 पैरामीटर्स याद नहीं होंगे एक बार में, तो 5-6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, गौर से देखो। इस पूरे 13 आउट ऑफ दोज 13 ऑल्सो 5-6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसको हम छोटा सा नोट के जैसे, ठीक है, 2-4 छोटे छोटे राइटिंग में पीछे साइड लिख लेंगे, ताकि आंसर करने में वो हमारा हेल्प करता रहे, ठीक है। अपना दिमाग खुद से, अपनी प्लानिंग हमेशा बेस्ट, अपने तरीके से हमेशा प्लान करना है एग्जाम। क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट लगेगा आउट ऑफ दिस? इक्विपमेंट स्टैंडर्ड बार बार थोड़ी ना याद करता रहेगा कोई, जरूरी नहीं है। अल्टरनेट एरोड्रोम बहुत कम यूज पड़ता है। वेक टर्बुलेंस एक बार ध्यान पड़ गया, सेटिस्फाइड। कॉल साइन, एयरक्राफ्ट टाइप हमेशा थोड़ी भूलते रहोगे, इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लाइट लेवल 360, ठीक है। डिपार्चर टाइम 10:30 पे डिपार्चर था। रूट अल्फा 474, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी, तो इसको छोटा से नोट बना के पेज के पीछे में लिख लेना है, ताकि आपको बार बार पेज नहीं पलटना पड़े। गॉट इट? हर सर पेज इसको हम पे लिखना छोटा सा बना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, आपको नहीं लिखने का माना आप हाथ पे लिख लो, ठीक है, वेर एवर यू वांट। आई एम जस्ट सेइंग टू हिंट कि 13 पैरामीटर्स का भी हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है। और सपोज आपका दिमाग भी इतना ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली अप टू यू गाइस, मीन्स हम एक एवरेज स्टूडेंट का सिनेरियो लेते हैं जिसको एक बार में 13 के 13 पैरामीटर्स याद नहीं होते हैं, तो छोटा सा नोट किधर भी बना ले, ठीक है। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमको ये पांचों पैरामीटर इंपॉर्टेंट लगे, तो हम इन 5 चीजों को अपने सामने रखना चाहते हैं। क्वेश्चन तो आपको फाड़ने देगा नहीं, या पेज तो आपको चेंज करने देगा नहीं, तो बार बार पलट के देखोगे कि अच्छा कौन सा रूट था, कब क्या प्लान था। इससे बेटर है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको छोटे छोटे हैंडराइटिंग में कहीं पे कोने में एक जगह दबा के लिख लो, ठीक है। यस सर। ऐसा हम लोग ओके सर। मैथ्स के एग्जाम में बचपन में मैथ्स के एग्जाम में करते थे। कुछ एक फॉर्मूला बहुत टफ आता था, उसको रट के गया, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लिया, जो भी है AQ+BQ, ये लेंदी वाला, या फिर फंक्शन का कोई फॉर्मूला है, तो फटाफट उसको पेपर पे लिख लिया। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले उसको रट के गया हुआ है, 10 मिनट या 15 मिनट के बाद हो सकता है भूल जाऊं, तो जैसे ही आंसर सीट मिला सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख के रख लिया। अब आगे यूज आया तो फिर देख लेंगे आके, मेरी आंसर सीट, मेरा मर्जी।
ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रेटजी, योर प्लानिंग, वट एवर सूट्स यू। नहीं तो क्या होगा, 5-6 क्वेश्चन किया, दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट आए, दूसरे दूसरे टॉपिक आए, जो फॉर्मूला रट के गए थे भूल गए। तो दिमाग क्या लगाया, फॉर्मूला टफ है, रट के जाओ, जैसे ही आंसर सीट मिला सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, तो बाद में उसमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज योर प्लानिंग, योर स्ट्रेटजी, वट एवर सूट्स यू। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज obtain इंजन स्टार्टअप परमिशन। ठीक है, अब क्या है, हम एक शेड्यूल एयरलाइन फ्लाई कर रहे हैं, मीन्स आपके एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स होंगे, उनका सिक्योरिटी चेक होगा, उनका मल्टीपल थिंग्स होंगे। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक हाउ दैट कॉल विल गो। ऑब्टेन इंजन स्टार्टअप, ध्यान से सब लोग नोट भी करेंगे, राइट। सो दिल्ली ग्राउंड, हाँ हाँ, जैसे कि आप दिल्ली को VIDP लिख रहे हो, वैसे हम DEL सिर्फ नहीं लिख सकते? नेवर नेवर नेवर, आपको लिखना है तो आप DPN SMC लिखो। क्यों? क्योंकि अपने पास VOR कोड क्या है दिल्ली का, DPN। ठीक है, DPN लिखो। मैंने बताया था ना एक दिन कि आइदर DPN लिखो या पूरा का पूरा दिल्ली लिखो या VIDP लिखो, डेल करके नहीं लिखना है कभी नहीं। ओके सर। ठीक है, अपने पास टूल है, कंफ्यूजन आया DPN लिख लेंगे। डन। यस सर। हाँ, so we are giving a call to Delhi ground Victor Tango Sierra Charlie Mike on 121.9er। ठीक है, Airbus 320। अब देखो मेरे को क्या जरूरत पड़ी, डिपार्चर एरोड्रोम देखने की, तो हमको फ्लाइट प्लान जूम इन करके देखना पड़ा। Airbus 320 IFR दिल्ली टू अहमदाबाद, current position on stand 3, correction, apron 3, stand 4, security check completed, passenger on board 120, request engine startup, स्टार्टअप को शॉर्ट फॉर्म में SU लिखो, रिक्वेस्ट इंजन स्टार्टअप परमिशन। ATC का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, विक्टर टेंगो सियरा चार्ली माइक दिल्ली ग्राउंड स्टैंड बाय। अभी मत चालू करो, वेट करो। स्टैंडिंग बाय विक्टर टेंगो सियरा चार्ली माइक। या फिर क्या कहेगा वो कहेगा इसके अलावा सिनेरियो, उसके अलावा विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक दिल्ली ग्राउंड। एक तो SMC और SCM में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड या स्टार्टअप अप्रूव्ड, तो आप क्या बोलोगे, स्टार्टअप अप्रूव्ड विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक। देखो इधर वो आपको स्टैंड बाय में रख लेगा या अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल दिया तो उसका रीड बैक देना है और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करना है। अगर स्टैंड बाय बोला तो स्टैंडिंग बाय बोल के होल्ड पे रख लेना है खुद को। अभी देखो इस कॉल को शुरू से रिव्यू करते हैं। आई वॉज गिविंग अ कॉल टू दिल्ली कंट्रोल दैट वी आर विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक ऑन 121.9ers Airbus 320 IFR, वी आर ऑपरेटिंग IFR फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद। ये हमने फ्लाइट प्लान दिया, क्यों? क्योंकि हमारा शेड्यूल एयरलाइन का कॉल है और स्टार्टअप मतलब इंजन स्टार्ट करके हमको आगे के लिए ट्रेवल करना है। तो जब हम अपना जर्नी डिटेल ATC को एक्सप्लेन करेंगे तो ATC को क्विक रिमाइंड होगा हमारे बारे में।
ठीक है, कि अहमदाबाद के लिए जनरली ऐसे ही याद करते हैं लोग, एटीसी या ऑपरेशंस की टीम, कि अहमदाबाद वाली फ्लाइट गई क्या, वो डेस्टिनेशन से याद रखते हैं कि 7 बजे अहमदाबाद के लिए जाना था, तो उनको क्विक रिमाइंड होगा। वी आर ऑपरेटिंग अंडर IFR फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, आवर करंट पोजीशन इज, अब देखो करंट पोजीशन बोलते टाइम हमने एप्रॉन से पहले स्टैंड बोल दिया, तो हमको क्या रियलाइज हुआ कि हमने मिस्टेक किया। देन आई टोल्ड करेक्शन, तो जैसे ही मैंने बोला करेक्शन, तो लास्ट में हमने जो लिखा उसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ करेक्शन। करेक्शन बोला तो जो हमने लिखा सबसे लास्ट में उसको कट कर दिया। करेक्शन, एप्रॉन 3 स्टैंड 4। अब पैसेंजर का फ्लाइट है तो सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो SCC, सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड। पैसेंजर ऑन बोर्ड, पर्सन ऑन बोर्ड नहीं, पैसेंजर बोलेंगे क्योंकि कॉमर्शियल फ्लाइट है। पैसेंजर ऑन बोर्ड 120, रिक्वेस्ट इंजन स्टार्टअप परमिशन, इंजन को चालू करने का परमिशन दीजिए। ना ATC might told Victor Tango Sierra Charlie Mike, that is W1, W2, he himself, Delhi ground, stand by, रोक दिया, तो आप बोलोगे स्टैंडिंग बाय विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक, और आपको उसने परमिशन दे दिया स्टार्टअप अप्रूव्ड, तो आप बोलोगे स्टार्टअप अप्रूव्ड विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक। या फिर आप ज्यादा सिंसियर पायलट हो तो स्टार्टअप अप्रूव टर्निंग ऑन इंजन्स, अप टू यू। ठीक है, सिंपल इंग्लिश ग्रामर का यूज करके आप जो बोल सकते हो बोलो। स्टार्टअप अप्रूव्ड टर्निंग ऑन इंजन्स विक्टर टैंगो शियरा चार्ली माइक। बट आपके लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स या ज्यादा टफ नहीं होने चाहिए, इट शुड बी सिंपल। अंडरस्टूड, समझ में आया? यस सर। सर हेलो, यस सर अप्रोन जरूरी है क्या सर बोलना? नहीं, डायरेक्ट स्टैंड भी चलता है। या तो मुझे करेक्शन दिखाना था तो मैंने आपको बताया। ठीक है, करेक्शन कैसे इंडिकेट करते हैं। हाँ हाँ, इसमें ऐसे नहीं, इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, जैसे स्टैंड पे खड़ा है तो डोर्स आर क्लोज्ड, का मतलब क्रू मेंबर कितने हैं हमारे पास, क्रू तो कुछ नहीं बोलेंगे। नो, पैसेंजर ऑन बोर्ड। बिल्कुल ओनली पैसेंजर ऑन बोर्ड, ये भी नहीं बोलना है। ठीक है, ये तो मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ। पैसेंजर ऑन बोर्ड भी नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, सीधा बोलो सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड। क्रू वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, तो मैं ये सारा लिखने के बाद मिटा रहा हूँ। हाँ, व्हेनेवर आई एम गिविंग द कॉल, आप सब नोट कर रहे हो ना? अदरवाइज मुझे बैक करके बैकअप ढूंढना पड़ेगा, ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब नोट करते जाना कंटिन्यूअसली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, ऑब्टेन पुश बैक। ठीक है, पुश बैक परमिशन, पुश बैक भी तो जरूरी है एयरक्राफ्ट का। स्टैंड से पीछे जाओगे तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, आपको परमिशन कॉकपिट से ही लेनी है। या फिर कई बार जो आपके वो नोज लैंडिंग गियर में जो माइक लगा के रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उस पर्सन को क्या नाम दिया जाता है? ग्राउंड पे हेडफोन कनेक्ट करके रहते हैं ना ड्यूरिंग टोइंग, क्या बोलते हैं उस पर्सन को, डेजिग्नेशन क्या है उनका? वैसे तो ग्राउंड ही बोलते हैं सर, वो ग्राउंड टू कॉकपिट। ग्राउंड टू कॉकपिट। नहीं समझ रहे हो, लाइक आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अपने हमारे एविएशन में तो ऐसा नहीं होता, दैट्स आई डोंट नो। नोज लैंडिंग गियर में एक हेडफोन लगाने का जैक होता है। ठीक है, दे कैन कोऑर्डिनेट विद पायलट। ठीक है, तो ये जो पर्सन ग्राउंड पे माइक लगा के खड़े रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या डेजिग्नेट करते हो, व्हाट इज हिज नेम? मार्शल? मार्शल तो नहीं होते, ग्राउंड मैन। ग्राउंड नहीं बोल सकते सर ग्राउंड, जी भी बोल ग्राउंड। तो कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब कि परमिशन या तो कॉकपिट से आएगा, ठीक है, टोइंग के टाइम पे,
या फिर ये ला के देगा। ठीक है, कहने का यही मतलब है। सो यू नीड टू ऑब्टेन पुश बैक परमिशन। ठीक है, ग्राउंड क्रू बोल पुश, सकते हैं सर उनको। आप जाके कल पूछना, आप तो डेली ड्यूटी करते हो ना, लाइक दिस ओनली, पूछना कि क्या डेजिग्नेशन है तुम्हारा। सर ये उसमें दिख रहा है रेडियो टेलीफोनी वाली जो बुक है ना सर, हाँ हाँ, मैंने अभी पढ़ा, हैविंग रिसीव्ड एटीसी अप्रूवल द पायलट स्टार्ट द इंजन असिस्टेड एज नेसेसरी बाय ग्राउंड क्रू। तब मैं आपको ग्राउंड क्रू एंड ऑल, बताता हूँ ये सब तो एक ब्रॉड वर्डिंग है। ठीक है, दीज आर द ब्रॉड वर्डिंग। ठीक है, ये लार्ज स्केल पे सबको ग्राउंड क्रू बोलोगे, जिसमें इंजीनियर, आपके जितने भी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हैं, सब ग्राउंड क्रू में आते हैं। मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा था, इफ यू नो दैट इज अ बेटर थिंग, अदरवाइज ग्राउंड क्रू तो बोलना ही है। ठीक है, आप तो डेली डिपार्चर वगैरह देखते होगे, पूछना क्या डेजिग्नेशन है तुम्हारा, या फिर क्या बोलना चाहेंगे, या पायलट से ही पूछना कि क्या बोलेंगे। डन। हालांकि वो सर रिक्वायर्ड हम नहीं है अवेनिक्स एसआरटी में में। तो हाँ हाँ, सर हमको अभी डिपार्चर नहीं देते सर हमें भी। अब अच्छा अच्छा। यहाँ पे अवेनिक्स में है ना, तो अवेनिक्स एएनसी वाले देते हैं डिपार्चर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, डन। जो भी बोलते हो, क्योंकि रहते हैं बहुत सारे डेजिग्नेशन रहते हैं इस टाइप के, फोरमैन, लीड ग्राउंड क्रू, ये सब करके कुछ ना कुछ रहता है स्पेसिफिक नाम भी। कुल मिला के पुशबैक परमिशन में ये कहना था कि या तो जो कॉकपिट में बैठा है पायलट, आफ्टर ऑल पूरे फ्लाइट ऑपरेशन में, ठीक है, सबसे बेसिक चीज एंड फॉरमोस्ट थिंग याद रखो, पूरे फ्लाइट ऑपरेशन में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है पायलट, हर चीज के लिए। किसी भी टाइप का ड्यूटी करने के लिए अगर उसको स्पेशलाइज्ड सपोर्ट नहीं मिला है, तो सारा रोल आएगा पायलट के ऊपर, हर चीज। ठीक है, हमारे यहाँ तो पायलट ही एयरक्राफ्ट में ब्लैंकिंग वगैरह भी लगा के जाते हैं, एयरक्राफ्ट का पार्किंग वगैरह के बाद जो पिटोट स्टेटिंग में ब्लैंक लगाने हैं, लैंडिंग गियर्स में पिन लगाने हैं, सब पायलट करके जाएगा। तो जिस भी ड्यूटी के लिए सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पायलट करेगा हर एक काम, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है पायलट। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ उस खुद करे, तब जहाज ऑपरेट करे। डन। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है पुश बैक की, हैव अ लुक। पुश बैक की रिक्वायरमेंट है ना। नाउ दिल्ली ग्राउंड Victor Tango Sierra Charlie Mike on 121 decimal liner Airbus 320 IFR, IFR लिखने के टाइम पे आई लिख चलोगे चलेगा, या फिर IFR दिल्ली टू अहमदाबाद सिक्योरिटी चेक करेक्शन। करंट, देखा करेक्शन कैसे मेंशन किया, जैसे ही बोला करेक्शन लास्ट वाला कैंसिल। करंट पोजीशन ऑन स्टैंड 5 करेक्शन, करंट पोजीशन ऑन, फिर से देखा करेक्शन ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 6, सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, पैसेंजर ऑन बोर्ड 120, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर पुशबैक। या फिर कई बार क्वेश्चन में क्या रहेगा कि पुशबैक एंड स्टार्टअप एक ही साथ मिक्स रहता है, तो यहाँ पे बस मेंशन कर देना वेक टर्बुलेंस, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर पुशबैक एंड स्टार्टअप। अब देखो, स्टार्टअप मेंशन किया, वेक टर्बुलेंस हमने मेंशन ही नहीं किया, तो लास्ट में बोल देंगे वेक टर्बुलेंस मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन में रहता है कई बार पुशबैक प्लस स्टार्टअप एक ही साथ। तो पुशबैक जब बोलते हैं उस टाइम पे तो इंजन ऑन नहीं है, तो वेक टर्बुलेंस बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। बट जब हमने स्टार्टअप को मिक्स किया, तो वेक टर्बुलेंस बोलना मैंडेटरी पैरामीटर है, तो हमने मेंशन कर दिया लास्ट में वेक टर्बुलेंस मीडियम। क्लियर। फिर उधर से रिपोर्ट कॉल आया, विक्टर टैंगो शियरा चार्ली माइक दिल्ली ग्राउंड पुशबैक अप्रूव्ड। ठीक है, या फिर पुशबैक एंड स्टार्टअप अप्रूव्ड,
रिपोर्ट व्हेन रेडी फॉर, ठीक है, रिपोर्ट व्हेन रेडी फॉर टैक्सी। पुशबैक एंड स्टार्टअप अप्रूव्ड, विल रिपोर्ट व्हेन रेडी फॉर टैक्सी। विक्टर टैंगो शियरा चार्ली माइक। अब मेरी धीरे धीरे हैंडराइटिंग बिगड़ते जाएगी, ठीक है, आज के बाद से मेरी हैंडराइटिंग बिगड़ते जाएगी। व्हाई? बिकॉज आई वांट, देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती है ऑन द स्क्रीन यू कैन सी, मैं काफी अच्छे से लिखता हूं, बट मेरी हैंडराइटिंग धीरे धीरे खराब होती जाएगी। व्हाई? आई वांट यू गाइज टू बी मोर फोकस्ड ऑन ऑडियो, नॉट ऑन द स्क्रीन। सुनने की आदत डालो अभी से, ठीक है। तो नाउ विल रिव्यू दिस कॉल, हाउ दिस हैज बीन गॉन। हमने दिल्ली ग्राउंड को बोला वी आर ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 5 IFR दिल्ली टू अहमदाबाद, सिक्योरिटी चेक हैज बीन कंप्लीटेड, पैसेंजर ऑन बोर्ड 120, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर पुशबैक एंड स्टार्टअप विथ टर्बुलेंस इज मीडियम। उसने बोला ओके, पुशबैक एंड स्टार्टअप अप्रूव्ड, रिपोर्ट व्हेन रेडी फॉर टैक्सी, जब आप टैक्सी करने के लिए रेडी हो जाओगे तो बताना। पुशबैक एंड स्टार्टअप अप्रूव्ड, ठीक है, एज अ रीड बैक। विल रिपोर्ट व्हेन रेडी फॉर टैक्सी, और इसके बदले में हम बोल सकते हैं विल को। विक्टर टैंगो सियरा चार्ली माइक। क्लियर? समझ में आया? यस सर। Yes. सबने नोट किया था? शैल आई वाइप इट आउट? Yes, sir. You can. ओके, नाउ 2 और कॉल हम देखेंगे आज ही, ठीक है, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे टोइंग, उसके बाद चलेंगे टैक्सी पे। टैक्सी के साथ इस क्लास को फिनिश करेंगे सो दैट टुमारो हम इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें एंड देन विल सी द कंडीशंस। ऑब्टेन टोइंग रिक्वेस्ट, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होता है ना, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन काफी सिंपल रहेगा। एक ट्रिक हमेशा समझो, ठीक है, जो जिन्होंने एग्जाम दिया है पहले उनको तो आइडिया होगा, या फिर जिन्होंने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे तो उनको आइडिया होगा। एक चीज आपको प्लान के थ्रू जाना है। अगर क्वेश्चन सिंपल आया, इसका आंसर राइटिंग खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जितना सिंपल उतना ही कम डेटा आपके पास, आंसर करने के लिए आपके पास डेटा कम है, तो आपको हर चीज हाइपोथेटिकली बोलना है, सोच समझ के बोलना है, अपने दिमाग से बोलना है, ठीक है। तो जितना सिंपल क्वेश्चन, तो इसको लोग 2 तरीके से लेते हैं। जिनको हाइपोथेटिकल आंसर करने का प्रैक्टिस है तो उनके लिए तो इजी है कि भाई क्वेश्चन सिंपल है, जो मनाओ आंसर करो, बस आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कंपैरिजन का प्रॉब्लम ही नहीं आता है। एग्जामिनर ये पकड़ ही नहीं पाएगा कि क्या बोलना था और बोल क्या रहा है। नाउ अगर क्वेश्चन लेंदी आया, हाँ एक चीज और, जब क्वेश्चन शॉर्ट रहता है तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ रहता है, बट आप क्वेश्चन समझ लिए, आंसर सबसे ज्यादा इजी रहेगा। नाउ क्वेश्चन अगर लेंदी आया तो क्या होगा कि आपको समझने में ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेटा पैरामीटर उस क्वेश्चन में मेंशन किए हुए रहते हैं। अब इसको टफ आंसर करना टफ हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मैंने क्वेश्चन में पैसेंजर ऑन बोर्ड मेंशन किया हुआ है तो तुमने अपने कॉल में पैसेंजर ऑन बोर्ड क्यों नहीं बोला, ठीक है। बट अगर सिंपल कॉल है ऑब्टेन स्टार्टअप, तो इसमें तो कुछ नहीं लिखा पैसेंजर ऑन बोर्ड, ये तो आपकी मर्जी, बोलो तो भी भला, ना बोलो तो भी भला। बट अगर क्वेश्चन लेंदी आता है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स मेंशन किए हुए रहते हैं, उसमें से अगर एक भी चीज अगर आप मिस करोगे तो एग्जामिनर के पास कंपैरिजन के लिए अवेलेबिलिटी आ गई। वो बोलेगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑयल टैंकर, ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन आया कि ऑयल टैंकर से फ्यूल लीक हो रहा है, तो अगर ऑयल टैंकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है तो तुम्हारे आंसर में IOCL ऑयल टैंकर क्यों नहीं बोला?
बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधा कि फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन ऑयल टैंकर, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं मेंशन किया है, तो यू आर फ्री, साइटेड फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन ऑयल टैंकर, कंपनी का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जामिनर को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो? तो ऐसे ही प्लानिंग के साथ हर एक स्टेप को आरटी में समझना होता है। अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ समझ लिए, बल्ले बल्ले, कुछ नहीं है, बहुत इजी रहता है। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन शॉर्ट आया तो आंसर हाइपोथेटिकल डेटा ले जाएगा। आप अगर हाइपोथेटिकल डेटा, हाइपोथेटिकल मींस फेंकने में अगर आप माहिर हो, नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। ठीक है? अगर वहां पे आप सस्पेक्ट करते हो, वहां पे आप अटकते हो, फंसे। क्या है क्वेश्चन? ऑब्टेन टोइंग रिक्वेस्ट, कुछ नहीं लिखा है कहां से कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है। चलो फेंकने की बारी आई, लंबी लंबी हाँकनी है। देखो, दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो शियरा चार्ली माइक on 121.9er Airbus 320, current position on apron 4 stand 6, request towing up to maintenance hangar number 3, या फिर request towing from stand 6 to stand 16, 16 तो नहीं बोल सकते, तो stand 6 to stand 16 for maintenance purpose, या फिर for repositioning। देखा? We are saying कि currently we are on apron 4 stand 6, request towing up to maintenance hangar for maintenance purpose, या फिर from 6 to 16 for repositioning। तो ये सब क्या है? ये हाइपोथेटिकल है। हमने खुद से सोचा कि क्यों करेंगे टो, आइदर रिपोजिशनिंग कर सकते हैं या मेंटेनेंस करेंगे। तो उधर से आइदर अप्रूवल आएगा या डिनायल आएगा। सो एटीसी माइट से विक्टर टैंगो शियरा चार्ली माइक दिल्ली ग्राउंड टोइंग अप्रूव्ड, आप भी बोल दो टोइंग अप्रूव्ड। हाँ, साथ ही साथ वो ये भी बोलेगा टोइंग अप्रूव्ड, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, तो आप भी बोलो टोइंग अप्रूव्ड विल्को विक्टर टैंगो शियरा चार्ली माइक। या फिर एक और सिनेरियो, ठीक है, उसने बोला टोइंग नॉट अप्रूव्ड, करेक्शन, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो नेगेटिव के साथ बोलेगा, नेगेटिव टोइंग नॉट अप्रूव्ड। यहां पे एक सीखने वाली भी चीज है, टोइंग नॉट अप्रूव्ड, वेट फॉर 10 मिनट्स। अब उसने क्या बोला? नेगेटिव टोइंग नॉट अप्रूव्ड। अब रीड बैक देना है। रीड बैक देते टाइम आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, आप सिर्फ बोलोगे टोइंग नॉट अप्रूव्ड। ठीक है? विल वेट फॉर 10 मिनट्स विक्टर टैंगो शियरा चार्ली माइक। समझे? नेगेटिव उसने अपने डिनायल के लिए बोला, आपको रीड बैक में नेगेटिव नहीं बोलना है। रीड बैक में आप सीधे फ्रेज पे आओगे। उसने बोला टोइंग नॉट अप्रूव्ड, तो टोइंग नॉट अप्रूव्ड। फिर उसने क्या बोला? वेट फॉर 10 मिनट, विल वेट फॉर 10 मिनट। गॉट इट एवरीवन? सर सर वेट का स्टैंड बाय नहीं बोल सकते? नहीं, इसने पर्टिकुलर टाइम दिया ना, वेट फॉर 10 मिनट। हाँ, अब देखो, आपने सही क्वेश्चन पूछा। स्टैंड बाय का मीनिंग बताओ क्या है? वेट करना, मैं कॉल करूंगा। आराम से, हाँ, वेट आई शैल कॉल यू। यहां पे तो नहीं बोला ना कि मैं कॉल करूंगा, 10 मिनट के बाद आपको भी कॉल करना पड़ सकता है, वेटिंग फॉर योर
परमिशन, या फिर 10 मिनट के बाद फिर से स्टेशन रीच करके परमिशन लो। इसने सिर्फ वेटिंग बोला, ठीक है। यस सर। हर एक छोटे से छोटे चीज का मीनिंग होता है, हर एक आंसर। अच्छा, लाइक अल्फा जूलियट डेल्टा, जब वो फ्रीक्वेंसी बोला करते थे, दैट टाइम ही वाज नॉट मेंशनिंग द ऑन। इसका भी मीनिंग है ना, दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम कि मेंशन करो ऑन 1 to 1 डेसिमल लाइनर। यस, एनी डाउट? यस सर, अगर एटीसी बोलता है, अगर एटीसी स्टैंड बाय बोलता है, स्टैंड तब आपको बाय स्टैंडिंग में बाय बोलना है, सिंपल। तो हाँ, स्टैंडिंग बाय फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। ओके। एटीसी जैसा बोला, एज इट इज। सर ये हाँ हाँ, गो हेड, गो हेड। वो पूछ रहा था सर, वो 320 के आगे क्या लिखा था सर इसमें? अच्छा अच्छा, आएगा ना। करंट पोजीशन, करंट पोजीशन हैंड राइटिंग गड़बड़ाई, करंट पोजीशन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, टुडे सर ये मुझे फ्रॉम के बाद नहीं समझ आया, फ्रॉम आपने क्या लिखा है? स्टैंड 6 टू स्टैंड 16। अच्छा, थोड़ी देर हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ेगी क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फ्रॉम स्टैंड 6 टू स्टैंड 16, मैंने ये वाला पोर्शन तो 2 बार रिपीट किया था, ठीक है। डन, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ज्यादा लोड नहीं देना है, फिर समझ गया। ओके, फॉर सर आप मेंटेनेंस इसकी है क्या रिकॉर्डिंग है? शेयर करोगे? हाँ, फॉर मेंटेनेंस ही है, फॉर मेंटेनेंस या फिर रिपोजिशनिंग। ओके सर। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, रहता है एक उधर, बार देख लीजिए। यूट्यूब पे है, आपके ड्राइव लिंक पे है। ड्राइव लिंक पे ऑटोमेटिकली डल जाया करता है। मैं ये नहीं समझ में पा रहा हूँ, लाइक आई एम ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट हैव अ लुक। स्क्रीन शेयर हो रहा है, यस सर। यस सर। इधर देखो। व्हेन यू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यहाँ पे डेली बेसिस पे मैंने आप सबको इनविटेशन भेजा होगा टीम्स पे, ठीक है। डेली बेसिस पे ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्ड होके कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है। तो शेयर करने की या कहीं पे अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए, बट पता नहीं व्हाई यू गाइज आर स्ट्रगलिंग हेयर। ऑटोमेटिक इस चैट में देखो, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर एक दिन का वीडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होके पहुंचता है, जो कि सबके लिए अवेलेबल रहता है। बट एनी हाउ, ड्राइव लिंक पे तो मैं डेली डाल दिया करता हूँ, और यूट्यूब पे भी, तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो अपना इवेंट है, राइट, मैं इवेंट ओपन करके यस दिखाता हूँ। इवेंट में इतने सारे कैंडिडेट को मैंने इनविटेशन भेजा था, एक ने एक्सेप्ट किया है, बाकी आप सबके मेल पे पड़ा होगा, पता नहीं। तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी डेली बेसिस पे। मैंने किया था सर। पता नहीं, हाँ, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ग्लिच होगा, या फिर आप लोगों ने MS टीम्स पे लॉगिन नहीं किया होगा अपनी ईमेल, डायरेक्ट लिंक करके ज्वाइन कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अरे नहीं भाव, अब yes, sir। ड्राइव लिंक पे, हाँ, ड्राइव लिंक पे ऑटोमेटिक सारे दिन के पहुंचे हुए हैं, ठीक है। इधर आज का भी डल जाएगा, हाँ ठीक सर। है, ठीक है। यस। हाँ, इसी तरह से सारे डल जाया करेंगे। डन, ओके। फॉर टुडे लेट मी अंडरस्टैंड कि आज हम मेरे साइड से नेटवर्क ग्लिच था, बिकॉज आई नीड टू रिपोर्ट द ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर आल्सो। कुछ प्रॉब्लम आया किधर भी? नहीं सर, नेटवर्क तो गुड था सर, अच्छा था। मीन्स थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, राइट? ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। देन टुमारो विल सी द टैक्सी कॉल्स एंड देन फर्दर इनिशियल एंड फर्दर कॉल्स। तो आज आई होप कि आप लोग आंसर राइटिंग का फॉर्मेट समझ गए होंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग का फॉर्मेट आप लोग समझ गए होंगे। एंड डोंट रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग्स, आई एम सेइंग इट अगेन। मैं कल से चलो थोड़ी सी अपनी हैंड राइटिंग अच्छी कर लूंगा, मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा आप लोगों पे लोड नहीं दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स पे रिलाई मत करो। जो मैं क्लास में आंसर लिखता हूँ ना, साथ ही साथ पेन एंड पेपर के साथ बैठो और क्लास में ही नोट करो, इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग करके रिवाइज करके प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस यहाँ पे मत करो, नो।
ठीक है, थोड़ा टाइम लो, मुझे 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, जो मैं कर्सिव में लिख देता हूँ उसको थोड़ा रिपेयर करके अच्छे से लिखूंगा, बट इधर ही उसको फिनिश करना है। ठीक है, 2 घंटे के सेशन में जो मैंने पढ़ा उसके लिए अलग से मुझे 20 मिनट भी नहीं देना है, बस यही ध्यान में रखो। फिर मैंने 2 घंटे क्या पढ़ा, अगर उसको अलग से फिर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो इसमें मैंने क्या पढ़ा, स्कूल या ट्यूशन वाला सिनेरियो नहीं कि स्कूल में भी 6 घंटे पढ़ा फिर कोचिंग जाके 2 घंटे पढ़ा, इधर वो नहीं, साथ ही साथ पढ़ो। ठीक है, सर कभी सो कभार हमारी तरफ से भी वो नेटवर्क ग्लिच हो जाता है ना, तो इसलिए मैं पूछा था। जैसे तो वो 10-15 मिनट के लिए मेरा भी नेटवर्क। उस टाइम अटका के पूछ लिया करो कि सर अभी क्या आपने बताया, वो टॉपिक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, हाँ जी। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी टुमारो। ठीक है, सेम टाइम 9 o'clock एंड विल कैरी ऑन फर्दर टॉपिक्स। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट फॉर टुडे, डन। गुड नाइट सर। Okay, good night.